So in last session we like let me share के हमने recap what we started EDA exploring data analysis. ठीक है, exploratory data analysis, so data का behavior. Okay, like these are the things where this journey of machine learning AI start. These are the now we can see the fundamentals and core knowledge. So guys, is like last session we were discussing about this IQR interquartile range, देन इवन वी सम मैनिपुलेशन रिलेटेड स्टफ. सो जब भी हम ये सेशन में कुछ, अगर मैं आपको कुछ एनालॉजी फिलोसॉफी अगर बता देता हूँ या कुछ अंडरस्टैंडिंग, तो यू कैन क्रॉस वेरीफाई. आप कहीं पे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, और उसको मतलब क्या आपका नॉलेज और ज्यादा स्ट्रांग होगा. मे बी फिर आपको फ्यूचर में यूज होगा उस सब चीजों का. बिकॉज सी, टर्मिनोलॉजीज इतनी है मशीन लर्निंग और एआई में, इतनी नई नई टर्मिनोलॉजीज है कि हमने अभी तक अपने जॉब के पूरे एक्सपीरियंस में इतने सब चीजें कभी सुनी नहीं. इतना सब है. तो हर एक टर्मिनोलॉजी, सो जस्ट मेक इट के रिवीजन कीजिए आप. यू कैन डू रिवीजन, यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ ऑन दोज पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट एंगल्स, so that it will be very helpful for you guys to move ahead. All right. So outlier detection and handling, that we discussed, we calculated. हमने एक practical example लेके we were calculating that. Okay, so how to handle outliers? There were I hope कि background में there is no noise ना for you guys, because in नो my नहीं। here बहुत सारा background का noise चल रहा है, but yeah, thanks to Zoom, okay, it reduces the noise. Then okay, so as I said कि uh, three methodologies है, strategies है. Either like how to deal with outliers. Are we removing outliers or are we capping the outliers? Capping in the sense we are not ignoring the outliers. We are using those, we are including the outliers in our data for next move. ठीक है. And transforming the outliers मतलब we are just shaping, or we can say the outliers will be there. We will not be removing outliers, but we are transforming, or we can say scaling the outliers to take these outliers into our data as it is, because it will be helpful for machine learning. ठीक है, like machine to learn on the data. So removing outliers we started, and Z-score method we discussed actually, and even in the practical implementation, we have seen कि using Z-score method how we are removing the outliers, like applying that Z-score wala condition. And Z-score is nothing but the formula, guys. So formula, you already know the formula, mu minus x divided by sigma, that is for Z-score, right? And this IQR interquartile range method is also one of the method from the like removing outliers. So उसमें हमने विस्कर का देखा था. फिर उसके बाद जैसे क्वार्टाइल का हमने डिसाइड किया कि एंड इवन वी कैन डिसाइड कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस विस्कर. ओके, but make sure it will be not very far away from whatever our standard value. तो स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब दो 1/5, लाइक 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR. तो इतना भी उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने यूज केस के हिसाब से और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से. तो कैपिंग इज द टेक्निक where, as I said, we will not be removing the outliers from the data. Which data? That data we will be going to feed to machine for learning. ठीक है. Use case when you want to keep data points but limit extreme values. Okay. ठीक है. तो देखो कैपिंग और फिर नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मिंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आई विल टेल द डिफरेंस. ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस. ओके, तो capping means what? Let's say as usual ना, this is your data and these are your outliers. Okay, these are your outliers. ठीक है. तो जनरली इवन लेट्स से दिस इज योर आउटलायर विच इज फार अवे. ठीक है. तो कैपिंग मीन्स व्हाट? लेट्स से दिस इज योर स्टैंडर्ड के भाई, मतलब लक्ष्मण रेखा के, दिस इज योर कंसिडरेशन ऑफ द डेटा के, यू विल कंसिडर द डेटा. मे बी डेटा इज स्प्रेड इन दिस वे. लेट्स से ऐसा स्प्रेड है डेटा. ठीक है. ओके, with the condition which you are considering the data, तो उसके हिसाब से ये सब डेटा इंक्लूड हो गया. ठीक है. और ये आपकी एक जो बॉर्डर लाइन है, एंड दिस लाइन इज नथिंग बट, इसके अंदर जो भी है उस डेटा को कैरी ऑन करो मशीन लर्निंग के लिए. ठीक है. बट व्हाट अबाउट दिस? तो कैपिंग में क्या होता है, ये जो इनको रिमूव नहीं करते, अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ना, इसको रिप्लेस, मतलब इस आउटलायर का डेटा पॉइंट को, वैल्यू को रिप्लेस कर देते इस वाले से. मतलब एट द एंड इसको ये बना देते कैपिंग. इसको भी इधर बना देंगे कैपिंग. मतलब जो भी आपका ये कैपिंग, जो आपका जो लास्ट बाउंड्री वाला पार्ट है ना, तो इनको यहां तक, मतलब अंदर नहीं खींचेंगे, सिर्फ यहां तक लेके आएंगे.
मतलब क्या, ये पूरा डेटा मिस नहीं हुआ आउटलायर्स, आपने कैपिंग कर लिया, मतलब उनका जो बॉर्डर का जो फाइनल जो कंडीशन में जो वैल्यू होगा कि भाई इसके ऊपर अगर गए तो आउटलायर, तो अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा चलो 100 से ऊपर अगर चला गया, ठीक है, 100 से ऊपर, एक सेकंड, ऐसा 100 से ऊपर, ठीक है, जो भी आउटलायर का वैल्यू है वो अगर 100 से ऊपर चला गया, तो उस आउटलायर को क्या कर दो, 100 कर दो। ये कैपिंग होता है, ठीक है। मतलब 100 के नीचे होगा जो भी होगा, 80 होगा, ये 80 90 ऐसे ही समझो, बिकॉज डेटा, अवर रियल डेटा इज टोटली डिफरेंट, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग गाइस आई एम टेलिंग कि दिस इज योर डेटा, सो फिर 80 20 ये सब डेटा है आपका, और आउटलायर है आपका लेट से 500, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 100 से ऊपर का जा रहा है, तो ये 500 को कर दो आप 100 कर दो, ठीक है। ये आउटलायर की वैल्यू जो है उसको 100 कर दो, ठीक है, विच इज अ बॉर्डर बॉर्डर ऑफ योर कंसिडरेशन। सो दैट इज नथिंग बट कैपिंग। तो कैपिंग होती है, परसेंटाइल बेस्ड कैपिंग होती है, और आईक्यूआर बेस्ड कैपिंग होती है, विच वी विल बी सीइंग इन अ प्रैक्टिकल वे, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप कि मैंने परसेंटाइल जब आपको बोला था, यू आर वेरी क्लियर विद द परसेंटाइल ना। इफ देर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। परसेंटाइल बेस्ड मतलब एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन परसेंटाइल, just for your knowledge and understanding guys, because we have discussed about percentage and percentile का जो difference है, I have explained you already in our in the previous sessions. तो just in case if you are not clear, please make sure कि आपको previous session में आप जाके उसको clear कर लोगे, ठीक है। all right, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मिंग द आउटलायर्स, ठीक है, थियोरेटिकली आई एम एक्सप्लेनिंग बट प्रैक्टिकली आई विल शो ऑल्सो कि कैसे होता है ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। यूज केस है व्हेन यू वांट टू रिड्यूस स्क्यूनेस व्हाइल कीपिंग ऑल डेटा पॉइंट्स, ठीक है, इन द सेंस कि यू विल नॉट बी रिमूविंग आउटलायर्स बट यू विल बी कीपिंग देम इन योर डेटा पॉइंट्स, एंड इन दैट केस you will be transforming the outliers. So what is different between capping and transforming? So transforming means you are, we can say squashing your data, or we can say uh, like आप उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू है, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट वैल्यू इन सच अ वे कि द रिलेशन बिटवीन द डेटा पॉइंट्स विल नेवर चेंज, बट द वैल्यू विल चेंज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या, कि आपका डेटा पॉइंट का जो भी रिलेशन है, रिलेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिलेशन चेंज नहीं होगा, मतलब जैसे कि इन अर्लियर सेशन मैंने जैसे बोला था, देखो कि हमने जब कैलकुलेट कर रहे थे तो जीरो से लेके वी वर फाइंडिंग कि भाई -1, मतलब जनरली क्या है, जैसे हमने लास्ट सेशन में बोला था कि -24 या 26 ऐसे वैल्यू आ रहा है, बट समवन आस्क्ड मी कि डेटा पॉइंट्स का वैल्यू माइनस में भी जाएगा क्या। तो एक्चुअल उसमें भी एक मेथोडोलॉजी और ये कंसिडरेशन है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो भी प्लेन रहेगा, वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो ओरिजिन एंड एंटायर डेटा स्प्रेड ओवर हियर, तो फिर नेगेटिव का क्या उसमें क्वेश्चन आ गया। अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला था गाइस कि इवन इट इज नेगेटिव ना, इवन इट इज नेगेटिव, लेट्स से -24, बट डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जीरो से लेके इसका जो डिस्टेंस है वो 24 ही रहेगा, ठीक है। इवन उसकी प्लेस वैल्यू जो है, उसकी फेस वैल्यू जो है, सॉरी, फेस वैल्यू जो है उसकी नेगेटिव है, बट प्लेस वैल्यू इन द सेंस डिस्टेंस उसका, तो डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर कंसिडरिंग द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दो दो टाइप के होते हैं, डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग जो होता है, डिस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग, विच इज नथिंग बट दिस काइंड ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। और एक होता है रिलेशन बेस्ड, मतलब जैसे हम ग्रेडियंट डिसेंट जिसको बोलते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम, ओके, इट विल कम इनटू पिक्चर व्हेन वी विल बी लर्निंग मशीन लर्निंग का जो पहला लेक्चर होगा, तो आई विल एक्सप्लेन यू द ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम, ठीक है। तो स्लोप बेस्ड वो है आपका, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग का आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम व्हेन वी विल बी टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो मैं उसको आपको प्रैक्टिकली विजुअली दिखा के फिर एक्सप्लेन करूंगा, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू गाइस व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग प्रैक्टिकली, ठीक है। तो सी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड यू नो कि लॉगरिथम जब हम यूज करते हैं तो इट इज नॉट चेंजिंग योर, क्या बोलते हैं, उसका जो वैल्यूएशन है, उसका जो एक बिहेवियर है उसको चेंज नहीं करता, जब उसको ट्रांसफॉर्म करता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। लॉगिंग जो करते हैं हम, लॉग टेबल और लॉग बेस्ड स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन हमने वेरिएंस कैलकुलेट के टाइम पे स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव सीन। देन बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन,
ओके, ऑप्टिमाइज लैम्बडा, तो एक लैम्बडा फंक्शन है, देयर इज वन फॉर्मूला है गाइस इसका, बॉक्स प्लॉट्स का, तो उसका यूज करके भी आपको यू कैन ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज, ठीक है। उसको बोलते हैं फॉर बेस फिट। अल्टीमेटली इस इनका एक ही पर्पस है दोनों का, कैपिंग और ट्रांसफॉर्मिंग आउटलायर्स का, कि यू विल नॉट लूज योर डेटा, आप आपका डेटा लूज नहीं करोगे, इवन इट इज आउटलायर ना, उसको आप कंसिडर करोगे, इंक्लूड करोगे आपके इसमें, ठीक है। जैसे कि जनरली आप देखते हो, अगर किसी क्लास में जैसे एक आउटलायर का एग्जांपल हमने लिया था, किसी क्लास में अगर 7-7 फीट का बच्चा है, या ऐसा बच्चा है विच इज एबनॉर्मल, ठीक है, कभी कभी होता है किसी क्लास में, हमारे टाइम पे होता था कि यार कोई बच्चा एबनॉर्मल है, और मे बी लेट से उसका हैंडीकैप है ना, तो ऐसा थोड़ी वो हैंडीकैप है फिर, अभी मतलब अभी बड़े बड़े स्कूल में होता होगा कोई चीजें, बट जनरली मतलब ऐसा होता नहीं था कि यार हैंडीकैप है तो उसको क्लास में नहीं बैठने देंगे, या फिर उसके साथ उसको अलग ट्रीटमेंट देंगे, मतलब दोज आर द थिंग्स गाइस। तो दिस काइंड ऑफ आप जो एनालॉजी हो समझ सकते हो आउटलायर्स के केस में भी, ठीक है। तो आउटलायर्स ट्रांसफॉर्मेशन और कैपिंग में वी डू नॉट रिमूव द आउटलायर्स, तो दैट इज द पर्पस। और अगर इसको एक पिक्टोरिकली अगर देखा जाए, तो सी दिस वन, ठीक है, ये दोनों जो है वो वेयर वी आर नॉट। यस, हिरल इज आस्किंग समथिंग, यस हिरल। अरे गौरव, एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे अभी हमने देखा टैपिंग और ट्रांसफरिंग आउटलाइनर्स, हाँ तो हाँ। इसमें इतना समझ, इट डिपेंड्स ऑन अ डेटा, एम आई राइट? आउटलाइनर्स टेक्निक इज डिपेंड ऑन द डेटा, विच डेटा वी आर वांट टू, मतलब किस डेटा में से आउटलाइनर्स निकालने हैं। यस यस यस। क्योंकि जैसे आपने कैपिंग के लिए बोला, दैट इज अ डिजिटल डेटा, अरे स्टैटिस्टिक्स डेटा। यस। ओके, एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर दैट ट्रांसफरिंग वाला जो ट्रांसफॉर्मिंग। थर्ड, हाँ, हाँ हाँ। ट्रांसफरिंग में इट्स लाइक अ रियल टाइम डेटा, और वी कैन से दैट, मतलब जो आई थिंक लिविंग थिंग्स पे वो मतलब द डेटा, आई थिंक प्रोबेबिलिटी वाला डेटा है जिसमें आउटलाइनर्स निकालते हैं। Yes, yes, ओके। yeah, yes, yes, yeah. And actually, these things ना, you will be getting like आप रियल टाइम में जब आपको कहीं पे ये सिनेरियोज आ सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली देखो जो भी हो जाए, लेकिन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टू डील विथ सर्टेन थिंग्स। तो आपके भी ऑफिशियल केस में, या कभी अगर स्क्रैच से लेके आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, टू डील विथ दोज डेटा ना, तो दैट टाइम यू विल रियलाइज के मतलब लेट्स कंसिडर कि अगर आपके पास लेट्स से डेटा इज इन अ बिग बिग, जो भी डेटा का पहले आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। नाउ आई एम लाइक डूइंग लाइक एक्सप्लेनिंग दिस इन स्टेप बाय स्टेप। पहले हम क्या करते हैं, चलो स्क्रैच से अगर आपको कुछ एलएलएम डेवलप करना है, या कुछ मशीन लर्निंग का मॉडल डेवलप करना है स्क्रैच से, हाँ, ठीक है। एंड इवन वी विल बी टेकिंग दैट एग्जांपल कि उसको डिप्लॉय डेवलप करके पिकल फाइल, मॉडल की एक पिकल फाइल होती है, उसको बना के हम उसको डिप्लॉय भी करेंगे, वो देखेंगे। तो अगर आपको स्क्रैच से ये सब करना है, तो व्हेन यू गेट द डेटा ना, बेस्ड ऑन द डेटा यू यू डिफाइन के भाई आउटलायर्स के साथ जाना है या नहीं जाना है। बिकॉज लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला कि देखो, इवन टाइटैनिक टाइटैनिक के केस में क्या था, एक दो हमको डॉट दिख रहे थे ऑरेंज कलर के, दोज वेर आउटलायर्स, मतलब दो बंदे थे, उन्होंने हाई टिकट खरीदा था 500 रुपए कुछ तो, और बाकी सब नॉर्मली रिलाय रह रहे थे, ठीक है। तो अगर यूज केस ऐसा है, ठीक है, यूज केस अगर ऐसा है उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, कि नाउ अगर टाइटैनिक उस टाइम पे, हाँ, ऐसे ऐसे समझो, उस पर्टिकुलर टाइटैनिक वालों को उनका बिजनेस एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना, मतलब अगर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट देना है या सर्विस देना है, कि वो सर्विस हाई लेवल की होगी, मतलब हाई लेवल इन द सेंस जो फर्स्ट क्लास वाले बंदे हैं उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ उनका फोकस क्या रहेगा, कि यार जो हाई पेड जो कस्टमर्स है, वो उनका उनका मतलब उनका कंसिडरेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उस केस में, ठीक है। तो वो इन आउटलायर्स को रिमूव नहीं करेंगे, एक तो ट्रांसफर करेंगे, या तो कैपिंग करेंगे। अभी फिर इसमें क्या हो जाएगा चीज, फिर व्हाट अबाउट दिस डेटा विच इज लाइक जो नॉर्मल वाला मतलब जनरली एक डिस्ट्रीब्यूशन था टाइटैनिक के केस में, आई एम टॉकिंग बिकॉज विजुअलाइज करो, हमने उसका देखा था टाइटैनिक का एग्जांपल, ठीक है। अगर इनका प्रायोरिटी है हाई लेवल का प्रोडक्ट, तो ये क्या कर सकते हैं पता है, ये जो बॉटम वाले जो लोग थे ना, उनको छोड़ के ये ऐसा डेटा लेंगे जिसमें कि ना ये वाला चीज आउटलायर नहीं लगेगा ये वाले केस में, ठीक है। एंड ये वाला फिर आउटलायर, आउटलायर इन द सेंस कि दिस इज नॉट नीडेड बिकॉज ऑफ दिस गाइज आर लो बजट वाले हैं, और ये जो प्रोडक्ट वो बनाने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट वो हाई कॉस्टिंग है, तो इन कस्टमर्स का उनको कुछ मतलब यूज ही नहीं है, तो उनका डेटा रहेगा ये वाला,
and they can remove, or let's say they will not utilize this data. But it is totally depend on the problem statement ना. जैसे मैंने बोला पर्पस क्या था, बिजनेस का एक हाई प्रोफाइल का प्रोडक्ट बनाना था, वो पर्पस था, इसलिए दे आर डीलिंग विद दिस डेटा एंड दे आर मेकिंग, मे बी दे कैन रिमूव दिस डेटा। तो ऐसा होता है। ठीक है, अगर जनरली पूरे टाइटैनिक के हर एक कस्टमर को, मतलब जो भी पैसेंजर्स थे, सॉरी, हर एक पैसेंजर के लिए अगर वो प्रोडक्ट बना रहे, तो दे विल कंसिडर ईच एंड एवरी पैसेंजर। ठीक है, दे विल कंसिडर ईच एंड एवरी पैसेंजर। मे बी अगर लेट्स से कि उनका उनका कोई ऑटोमेटेड या नॉट ऑटोमेटेड, बट लेट्स से दे आर बिल्डिंग सम सॉफ्टवेयर वेयर ईच एंड एवरी पैसेंजर विल गेट बेनिफिटेड विद दैट सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ऐसा है कि चलो भाई, अगर आप समुद्र में ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपको उस सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि अभी आपका जो डेस्टिनेशन है वो कितनी दूर तक है। ठीक है, वो डेस्टिनेशन कितनी दूर तक है। बट लेट्स से फिर वो डेस्टिनेशन, वो सब चीजें एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और सॉफ्टवेयर के उनको चाहिए कि भाई हर एक पैसेंजर उनका कस्टमर रहे। ठीक है, तो मे बी फिर वो ऐसा नहीं देखेंगे कि ये आउटलायर, हर एक को कंसिडर, दे कैन कंसिडर ईच एंड एवरी पैसेंजर। सो टोटली डिपेंड ऑन वो किस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और ट्रांसफॉर्मिंग मतलब फिर ये जो आउटलायर्स थे जिनके बारे में मैं, ये जो आउटलायर्स थे, तो ट्रांसफॉर्मिंग इस केस में क्या हो सकता है, जब आप आपका डेटा ले रहे हो, तो हो सकता है आपने पूरा डेटा ले लिया। ठीक है, पूरा डेटा ले लिया, बट पूरा डेटा लेने के बाद, चलो अभी मैं आपको बताता पूरा डेटा लेने के बाद कैसा दिखेगा डेटा। ठीक है, मतलब अभी इस केस में वी आर नॉट, मैंने ये दो सिनेरियो दिखा दिए कि एक में हम रिमूव कर सकते हैं आउटलायर्स, और एक में हम वी हैव टू कंसिडर द आउटलायर्स। अच्छा, ये क्लियर करने के लिए यहाँ से लेना हो। ठीक, ठीक है। अच्छा, ये एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड। ओके, ओके, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वो इरेजर से क्या हो रहा है, पूरा जा रहा है। ठीक है, लेट मी डू कंट्रोल जेड, एंड व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट इज ये वाला चीज। ठीक है, दिस तो हियर इन दिस कैपिंग मेथड ना, दिस इज योर प्योरली कैपिंग मेथड। ओके, तो कैपिंग मेथड में यू कैन सी कि यहाँ पे अगर आप देखो, तो इन योर केस ना, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब इस डेटा में, पर्टिकुलर डेटा में, ठीक है, एंड लेट्स से ये वाला पार्ट। ठीक है, दीज आर आउटलायर्स, दीज आर आउटलायर टॉप टॉप में, हाँ, टॉप में। ठीक है, आ, ये तो प्योर आउटलायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ये डिस्ट्रीब्यूशन ना, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, क्या था, एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम, आपको याद होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या हुआ था। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में व्हाट वी हैव सीन कि इवन डेटा इज नॉट इन अ नॉर्मल फॉर्मेट, बट द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इफ वी आर टेकिंग द मीन मीन ऑफ एवरी डेटा पॉइंट, एंड देन इफ वी आर प्लॉटिंग द मीन, तो हमारा उस मीन का जो प्लॉटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल बी योर नॉर्मल फॉर्मेट। वो हमने देखा था। अभी इस कैपिंग वाले केस में क्या हो रहा है गाइस, कैपिंग वाले केस में क्या हो रहा है, जो भी आउटसाइडर जा रहे हैं ना, इन अ लो डेंसिटी, ये वाले सीधा सीधा आपके, जो भी आपने जो डिस्कस किया है, मतलब जो भी आपने डिसाइड किया है इसका वैल्यू, ओके, वो उस वो कैपिंग से उसका, जैसे मैंने वो कंडीशन वाला चीज बोला था, वो अल्टीमेटली हो जाता है उसका बॉर्डर वाला पार्ट। ठीक है, तो मे बी, बिकॉज सी यहाँ पे आप सिर्फ कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने इसको आउटलायर बोल दिया। ठीक है, बट सी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिख रहा है ना, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वी कैन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने देखा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और लेट से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ठीक है, बट दिस ये डेटा और ये डेटा इज टोटली, यहाँ पे हमने किसी भी आउटलायर को रिमूव न करके उसका कैपिंग करके, तो हर एक डेटा पॉइंट पे कैपिंग अप्लाई हो गया, और व्हाट विच एवर इज गोइंग आउटसाइड द बाउंड्री ना, दे आर जस्ट मेकिंग द शेप, लाइक उनकी जो वैल्यू है वो सीधी ये हो रही है, बस यही है उसका फंडा। एंड जैसे कि वैल्यू बेस्ड आपने बोला, ठीक है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में आपका क्या हो रहा है, जैसे कि लॉग वाला चीज मैं आपको बोल रहा था, लॉग में क्या होता है जनरली, लॉग में होता है आपका बिहेवियर, मतलब एक रिलेशन करके एक चीज है, डेटा में रिलेशन। ठीक है, तो जो रिलेशन है ना, वो उस पे आप कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, आपको उसका वैल्यू में, जैसे कि देखो 25, अगर उसको बोले स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, तो 25 का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे यू विल सी कि भाई इसका तो क्या हो गया, इसका डायरेक्ट वैल्यू ही चेंज हो गया, 25 से 5 हो गया। तो हाउ वी आर सेइंग कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो इसका जो
आप अगर देखोगे, देखो 25 and 5 इज रिलेटेड इन विच वे, बिकॉज 5 के टेबल में, 5 के मल्टीप्लीकेशन में आता है 25, ठीक है। तो द थिंग इज, इसमें अगर ट्रांसफॉर्म हुआ है तो इवन आई कैन यूटिलाइज दिस वाला डेटा टू नो कि मतलब इसका इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं इस ये अगर मुझे मिल गया है और ये जो रिलेशन मुझे मिल गया है स्क्वायर रूट का, तो उस रिलेशन का यूज करके मैं इसका ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी एकदम डीप में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो जनरली आप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो रहा है, आउटलायर्स को हम रिमूव नहीं कर रहे, और आउटलायर्स का जो बिहेवियर है वो उसका अंदर मतलब आने के बाद इट विल बी विथ आवर दिस डेटा, लाइक जनरल डेटा के साथ रहेगा, बट आफ्टर आफ्टर ऑल ना मशीन विल अंडरस्टैंड द रिलेशन रिलेशन एट द एंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड, लेट मी, ये ट्रांसफॉर्म वाला मैं इधर लेके आता हूँ, ठीक है, बस ये वाला, दिस इज आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग गाइस। तो ट्रांसफॉर्मिंग में आप यहाँ पे डेंसिटी का थोड़ा सा देखिए, और इसका यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये ऐसे बोल्ड डॉट्स दिख रहे हैं, बोल्ड डॉट्स, ठीक है। तो बोल्ड डॉट्स में these dots are included after transforming the values, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द वैल्यूज, एंड दिस इज लाइक ये लॉग ट्रांसफॉर्म होने के बाद वाला डेटा है, ठीक है। एंड हियर you can consider the entire data set, you will not get rid of the outliers and you will not ignore the outliers in this case, ठीक है। ये विजुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ, और लाइक प्रैक्टिकली लेट्स सी कि हाउ ये प्रैक्टिकली कैसे हैंडल होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि मे भी हो सके आपको जब आप एक्चुअल अगर आपको मिलता है डेटा, तो दैट टाइम, और इवन ठीक है एक्चुअली तो ठीक है, यू कैन गो टू कैगल, कैगल के डेटा सेट में आपको मैं आपको ये ईडीए के मतलब ईडीए के सेशन में आज के सेशन होने के बाद है ना, मैं आपको कुछ लिंक्स दूंगा गाइस, वहां पे यू कैन टेक द डेटा सेट्स, आप वहां से डेटा सेट्स ले सकते हो, ठीक है। डेटा सेट्स वहां से ले सकते हो आप, और जान सकते हो कि डेटा को ईडीए करो आप, ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं मिलता, तो लेट्स डू द ईडीए ऑफ दैट डेटा, एंड देन यू विल फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, ईडीए करोगे, ग्राफ्स देखोगे, तो मे बी आपको आउटलायर्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, जैसे अभी वी आर इन बिटवीन, जब हम मशीन लर्निंग तक आ जाएंगे ना, तब मैं जब आपको असाइनमेंट देना शुरू शुरू कर दूंगा, स्टार्ट टू एंड मशीन लर्निंग के मॉडल, तब आप देखना कि भाई एक्यूरेसी ऑन द डेटा डायरेक्टली, आपने अगर इम्बैलेंस डेटा को डायरेक्टली यूज किया है मॉडल मॉडल को लर्निंग करने के लिए, और मॉडल की एक्यूरेसी देखना, तो एक्यूरेसी आएगी 70%। अगर आप ये स्केल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे उस डेटा पे, एंड देन यू विल सी द एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी जो है ना वो लगभग 80 और 90% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल क्या है, मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ाना, ठीक है। और ये कैसे बढ़ेगा, तो हाउ यू आर डीलिंग विद द आउटलायर्स एंड हाउ यू आर डीलिंग विद द इनबैलेंस डेटा। तो अभी के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड वेन वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग ना, तो प्रैक्टिकली मैं आपको पूरा स्टार्ट टू एंड प्री प्रोसेस और ये स्केलिंग करके फिर आपको एक्यूरेसी में चेंजेस दिखाऊंगा, तब you will be understanding कि हाँ, why we are doing this kind of transformation, why we are removing the outliers। तो outliers रिमूविंग का भी एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने, आई होप कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि ये प्रिजनर्स का डेटा, फिर लेट से द रेट्स, जो क्रिमिनल के रेट्स है, ठीक है, वी विल सी दैट काइंड ऑफ डेटा, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टाइम ऑल्सो, ठीक है। बट राइट नाउ these three methodologies, let's see practically how these three methodologies are implemented and used, and try to understand in that way also, ठीक है। तो let me execute, सी ये एजेंटिक वाला पार्ट है, इट वाज, फिर ये ओके, वी विल बी यूजिंग लाइक वी वेर यूजिंग 3.10 पाइथन वाला। आपने देखा किसी ने ब्राउज यूज, मैंने बोला था ना ब्राउज यूज करो करके, अगर आई होप कि आपको ही बोला था ब्राउज यूज के बारे में। If you want to integrate some agentic AI in your like your or for your organization or whatever your purpose, try to explore browse use guys। उसमें भी थोड़ा सा गेट क्लोन, इसको उसको गेट क्लोन करो, थोड़े इंस्टॉलेशन से उसको इंस्टॉल करो आप, और क्या उसके स्पेल बाद, है? हाँ सॉरी, स्पेल क्या है? हाँ लेट मी शो इट, मैं आपको ब्राउजर पे बता देता हूँ।
ऐसा ब्राउज यूज करके बहुत अच्छा है वो, मतलब उसको ऐसे आपका एक्सप्लोरेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज वो तो एट द एंड वो बाद वाला पार्ट है। ब्राउज यूज, हाँ ये वाला, ये वाला आप क्या करो, क्लोन करो इसको, ठीक है, क्लोन करो और देखो ये कैसे काम करता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर आपको मतलब ऐसे जब आपको टाइम मिलेगा या आपको अगर ईगरली इसको सीखना है ना, तो ये सब देखो आप, ठीक है। और जनरली मैं जैसे अपना मशीन लर्निंग शुरू हो जाएगा ना, मैं डे बाय डे आपको अच्छे अच्छे जो नए नए जो आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देते रहूंगा, मतलब ऐसे भी नहीं कि हम वी आर लैगिंग बिहाइंड, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसका उसके बारे में बताते रहूंगा, ठीक है। तो इसको अगर यूज करना है तो जस्ट गो एंड स्टार्ट विद दिस दिस डॉक्यूमेंटेशन, पहले तो गेट क्लोन कर दीजिए आप, और यहाँ से शुरू कर दीजिए लोकल सेटअप कैसे करते हैं, यहाँ से आपको जल्दी पता चल जाएगा, इंस्टॉलेशन से प्ले राइट है इसमें ना, सो मेनी थिंग्स आर हियर, एंड जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो एग्जांपल्स का एक फोल्डर है, उसको सिर्फ आपके यहाँ पे रन करना पाइथन की कमांड, एंड देन यू विल सी कि हाउ यूजफुल दिस ब्राउज इज। तो मे बी फिर आप रिलेट कर पाओगे, आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एजेंट्स के बारे में कुछ बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन को, तो ये दिस इज ओपन सोर्स, यू कैन ट्राई देन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बेस, ठीक है। बट साइड बाय साइड पैरेलल लर्निंग हम करते रहेंगे, एज आई सेड कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगा, जस्ट जस्ट फॉर अ सेक कि हम ऐसा आपको ना लगे कि हम वी आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। तो ऑलराइट, ये एग्जीक्यूट हो गया, हमने ये देख लिया था, ठीक है। एक काम करता हूँ, जो अपना जो चीज़ है उसको यहाँ तक देखा है ना हमने, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे अ, देखो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो मैं भी भूल गया इसमें, ये है नोटबुक सेल और रन ऑल द अबव सेल्स, एग्जीक्यूट अबव सेल्स, ठीक है। ये सब एग्जीक्यूट हो गए, यहाँ तक हम आए थे, और ठीक है, वी हैड डिस्कस दिस थिंग्स गाइस। सो रिमूविंग आउटलायर्स भी हमने डिस्कस कर लिया था, यस ये भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आउटलायर्स है, IQR बेस्ड ये भी हो गया था हमारा लास्ट सेशन में। कैपिंग हम देख रहे थे, एक्चुअली कैपिंग हम देख रहे थे, तो परसेंटाइल बेस्ड कैपिंग है, ठीक है। और ये क्वांटाइल के हिसाब से, जैसे लोअर और अपर, उसके बारे में भी वी वर डिस्कसिंग ना, कि लोअर और अपर के बारे में फिर अमोल ने जैसे पूछा था कि अपर और लोअर बाउंड, एक्चुअली अल्टीमेटली वही वो वाला सीन है, कैसे जैसे हम वो माइनस निगेटिव वाले आउटलायर का मैं बोल रहा था आपको, निगेटिव वैल्यू वाला, ठीक है। तो परसेंटाइल बेस्ड ये वाला देखते हैं अभी, पोजीशन। तो परसेंटाइल से मैंने लेट मी रिवाइज, परसेंटाइल जैसे मैंने बोला था ना, कि जो भी आपकी रैंकिंग है, तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर सपोज लेट से 10 बंदे हैं गाइस, 10 बंदे हैं, ठीक है। तो लेट से इसके इसके नीचे अगर एक दो और तीन बंदे हैं, तो इसका परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा, इसका परसेंटाइल आपका कैलकुलेट होगा कि इसके नीचे कितने बंदे हैं, तीन, टोटल कितने बंदे हैं, 10 × 100, ठीक है, ये हो गया इसका परसेंटाइल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो परसेंटाइल पोजीशन, और ये पोजीशन बेस्ड, तो n-1 इसलिए, इफ यू रिमेंबर मैं बोला फिर लास्ट बंदे का क्या करोगे फिर, ठीक है। तो ऑलवेज इट टेक्स n-1 पोजीशन, ठीक है, n-1 मतलब इसके नीचे के, ठीक है, टोटल कितने हैं, 10, तो इसके नीचे हमेशा 9 रहेंगे, इसके नीचे उससे एक कम ही रहेंगे, ऐसा वो वाला n-1, और उसका परसेंटाइल, सो दैट इज योर पोजीशन, ठीक है। एंड दिस इज परसेंटाइल बेस्ड कैपिंग वी आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है। एंड इन दिस परसेंटाइल बेस्ड कैपिंग, तो ये एक एक्सप्लेनेशन है उसका, बट इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट परसेंटाइल उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यू जस्ट लाइक, ये क्लैप डेटा, 1 सेकेंड ना, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये नोटबुक में मैंने आपको यहाँ पे लिखने का इतना ही रीजन था कि यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो लेट्स से फिफ्थ परसेंटाइल अगर आपको देखना है, तो व्हाट यूर ये फॉर्मूला है उसका, पोजीशन इज इक्वल टू n-1 इंटू परसेंटाइल, तो परसेंटाइल कितना था, 0.05, ओके। पोजीशन एन एन क्या है, 15 है, ठीक है, मतलब ये टोटल इसकी साइज, डेटा की साइज कितनी है, 15 है, ठीक है। तो n-1 मल्टीप्लाई, सो दिस इज 0.7, तो उसकी पोजीशन है 0.7%। एंड ये पोजीशन होने के बाद ये सब एक्सप्लेनेशन है, बट एज ए सेड कि परसेंटाइल बेस में आपको सिर्फ ये यूज करना है, एंड देन लेट मी शो कि डेटा में क्या हो गया, ठीक है। तो डेटा में 15 के 15 वैल्यूज वैसे के वैसे है, डेटा इज जस्ट कैप्ड, वी हैव कैप्ड द डेटा, हमने कैपिंग यूज किया, और कैपिंग यूज करने के बाद ये जो 130 है ना, ये बाउंड्री है एक्चुअली, और वो वैसे के वैसे रहा। अल्टीमेट पहले अपना डेटा क्या था, चलो डेटा के साथ हमने यहाँ पे कुछ किया था क्या, 90,
0.04 एक्चुअली यहाँ से आउटलायर ही निकाल दिए थे एक्चुअली ना, तो दैट्स वाई, एक सेकेंड ना, 2.9 इट वॉज कंसिडरिंग द आउटलायर, सो 130 इज देयर, ठीक है। तो यस डेटा, दिस इज डेटा एक्चुअली, दिस इज डेटा, ओके। एंड नाउ ये डेटा में चेंज कैसे हुआ वो देखेंगे अब। डेटा था तो डेटा हमने प्रिंट किया एंड डेटा इज एज इट इज, ये वाला डेटा है। हाँ, अब कैप डेटा कैसे दिखता है देखो। तो कैप डेटा में क्या हो गया देखो, 130 जो थे वो 108 पे आ गया। तो जैसे मैंने बोला कि बॉर्डर की वैल्यू क्या है 108, मतलब 108.30 के ऊपर अगर 109 भी आ गया ना, तो इट विल बी कंसिडर एज आउटलायर। तो उसको क्या कर लिया, 130 को, जो आउटलायर की जो बाउंड्री थी वो कैपिंग करके 108 हो गई। तो 108 उसकी वैल्यू चेंज हो गई 130 की, ठीक है। 130 की वैल्यू चेंज हो गई 108। तो नाउ अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन विच हिरल आस्क्ड। तो इन टर्म्स ऑफ कैपिंग में देखो, यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ कैपिंग में हुआ क्या है, एक डिफरेंस अगर आप देखोगे, कैपिंग में क्या हुआ है, कैपिंग में ये हुआ कि आपके डेटा पॉइंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 थे, कैपिंग करने के बाद क्या हो गया, डेटा पॉइंट्स 15 के 15 रहे। मतलब क्या, यू हैव गिवन जस्टिस टू योर डेटा। जस्टिस मतलब क्या, कि आपने डेटा में से पॉइंट को निकाला नहीं, डेटा को कम नहीं किया, डेटा को आपने है वैसे ही रखा, डेटा को आपने है वैसे ही रखा। और आपने चेंज क्या किया, जो आउटलायर था उसको आपने कैपिंग करके आपके जनरल इसमें ले लिया, और उसको कैसे लिया, बॉर्डर पे लिया। तो फिर इसमें फिर डेटा के बिहेवियर में इंपैक्ट हुआ है क्या, यस इंपैक्ट हुआ है बिहेवियर में। और वो कैसा हुआ है, मैक्सिमम इंपैक्ट नहीं हुआ, मैक्सिमम इंपैक्ट नहीं हुआ इन द सेंस कि जो एक एक सर्टन आउटलायर्स थे उनको हमने कवर कर लिया। अगर लेट से मैं इसको आउटलायर्स बोल रहा हूं, अगर इसमें ज्यादा डेटा रहता, ठीक है, ऐसा अगर डेटा रहता, तो आर वी सेइंग कि दीज आर आउटलायर्स, नो, इन दैट केस आवर डेटा विल बी लाइक दिस, ओके। इन दैट केस बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन आवर डेटा विल बी लाइक दिस। सो आउटलायर्स यहाँ पे है ही नहीं, फिर ये वाला आउटलायर्स हो गया, फिर उसको तो आउटलायर्स की कैपिंग में क्या हो रहा है, आपका जो माइनॉरिटी वाला पार्ट है ना, जैसे मैंने वो गांव वाला भी एग्जांपल दिया था देखो, और उसका मैंने रियल टाइम भी एग्जांपल दिया, वो गांव वाले जो डेथ हुए हैं उनको हम छोड़ थोड़ी देंगे ना, उनको भी कंसिडर करेंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता आपके डेटा के बिहेवियर पे। तो यू कैन जस्ट टेक दोज आउटलायर्स अप टू बॉर्डर, ओके। तो ज्यादा तो नहीं, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को आप बॉर्डर तक ले लो और डेटा को है वैसे ही रहने दो, जस्ट कैरी कैरी ऑन दैट डेटा, ठीक है। तो दैट इज कैपिंग। ये हो गया कैपिंग। कैपिंग में क्या हुआ देखा ना आपने, 130 जो था आउटलायर उसको कन्वर्ट होके हो गया 108, ठीक है। एंड और ये बहुत बेसिक है गाइस, मतलब इतना ये एक लाइन में आपको रहेगा, बट व्हेन आप एल्गोरिदम पे काम करोगे तो ये एक लाइन में आपको पता चलेगा भाई कैपिंग किया है या ट्रांसफॉर्मेशन किया है आउटलायर का, बट यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ डेटा के साथ आपने क्या किया है, ठीक है। और यू विल इवन अंडरस्टैंड कि भाई अगर ऐसा सिनेरियो तो आपको क्या करना है डेटा के साथ, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन वी आर एक्सप्लेनिंग। देन कैप डेटा हमने देख लिया, फिर आईक्यूआर बेस्ड कैपिंग देखते हैं। तो आईक्यूआर वी नो इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो अपर बाउंड, और ये मतलब क्या, ये आपके विस्कर, ठीक है। ये वन क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल 1 है और ये क्वार्टाइल 3 है, और उसके बाद ये इनके बाउंड है, ठीक है। तो बाउंड मतलब क्या, 1.5 से नीचे जो भी आएगा उसको आप 1.5 कर लो, और 14.5 49.5 से ऊपर जो भी जाएगा उसको आप 49 कर लो, 49.5 कर लो। दिस इज द बाउंडिंग एंड कैप, लाइक आईक्यूआर बेस्ड बाउंडिंग है गाइस। और ये देखो कोडिंग में यहाँ पे किया है वही, जो भी है डेटा कैप, क्या डेटा का वैल्यू अगर लोअर बाउंड से लेस है तो उसको लोअर बाउंड कर लो, डेटा का वैल्यू अगर अपर बाउंड से ज्यादा है तो उसको अपर बाउंड कंसिडर कर लो, हो गया आपका कैपिंग। और वो हो गया आईक्यूआर बेस्ड कैपिंग, ठीक है। तो डेटा ये ऐसा, ये कंडीशन आपको बोल रहा है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो इसके लिए वो ट्रू हो गया। ये जो है सेकंड वाले डेटा के लिए ये वैल्यू ट्रू हुआ है। तो सेकंड वाला डेटा क्या था अपना, सेकंड वाला डेटा क्या था 0.5, ठीक है। तो ये आईक्यूआर के बेस में इट इज कंसिडरिंग दिस एज अ आउटलायर। तो इसको क्या कर लिया उसने, 1.5 बना दिया। देखो ये डेटा था, और जैसे ही इसको ये आईक्यूआर बेस कैपिंग किया तो वो 0.54 हो गया 1.5, ठीक है। एंड इन दैट केस यू यूज दैट डेटा इन यूर फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है। अगर इसका एनालॉजी देखा जाए तो आप इसका रिलेशन यहाँ पे भी लगा सकते हो, जैसे अगर आप किसी मैडम लोग मतलब टीचर लोग अगर किसी टॉपिक को आपको या पूरा एंटायर बुक पढ़ा रहे हैं, और एंटायर बुक में क्या होता है, कई कई कुछ कुछ टॉपिक जो रहते हैं, मतलब वो ऐसे भी बहुत बार ऐसा होता था कि यार हर एक टॉपिक को वो कवर नहीं कर पाते थे, ठीक है।
तो फिर कुछ टॉपिक छूट जाते थे। तो कुछ टॉपिक छूट गए तो रेगुलर क्लासेस में वो नहीं हुए ना, तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में एकदम झटक पटक से वो कुछ तो बता देते थे और उसको कवर कर लेते थे सिलेबस। तो दैट काइंड ऑफ कवरिंग ऑफ द सिलेबस यू कैन ट्रीट एज ए एनालॉजी ना, मतलब रेगुलर, मतलब हुआ होगा आपके साथ, आई डोंट नो, पर हमारे साथ कैसे होता था, स्कूल का हमारा सिलेबस भी और हो गया, मैडम छुट्टी पे चले गई थे कुछ तो, जो भी उसका रीजन था, फिर अभी स्कूल भी परमिशन नहीं दे रही, तो मैडम क्या कर, ठीक है, तो फिर संडे के दिन अगर खोल सकते हैं क्या, फिर हम हमको संडे बुला लेते थे, मतलब छुट्टी के दिन हमको हमको बुला के वो कवर करते थे। तो दैट काइंड ऑफ कंसिडरेशन गाइस, सो दिस काइंड ऑफ डेटा, फिर डोंट इग्नोर दैट। तो फिर कैसे, फिर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको कंसिडर कर लो आपके इसमें, और कुछ तो एडजस्टमेंट उसको कर लो। बट अल्टीमेटली दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, द स्ट्रेटेजीज आप बोल सकते हो कि आपको किस वे से मशीन को डील करना है, और उस डेटा को लेना है नहीं लेना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, एंड हाउ यू आर हैंडलिंग दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ दीज मेथोडोलॉजीज। तो लॉग ट्रांसफॉर्म क्या है देखो, तो राइट स्क्यूड डेटा, ठीक है, राइट स्क्यूड इन द सेंस, वी हैव सीन ना, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस, और राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यू, मैं हमारे स्टैटिस्टिक्स पे, तो आई आई विल नॉट लाइक, मैं वो अभी डायग्राम नहीं निकालूंगा, बिकॉज आई 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 होप कि यू यू अंडरस्टैंड। तो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है ऑन इनबैलेंस डेटा, सो इन दिस केस लेट्स से द डेटा इज इनबैलेंस एंड दैट डेटा इज राइट स्क्यूड डेटा, तो उसके लिए यू आर यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्या है, डेटा है आपके पास, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आई वाज एक्सप्लेनिंग टू दोस गाइस, तो डेटा 1 2 3 किया था और ट्रांसफॉर्म 1 2 3 किया था, बट एक्चुअली हियर ऑल्सो ट्रांसफॉर्म डेटा इज दिस, ये जस्ट वेरिएबल बेस्ड पे मैंने मतलब एक्सप्लेन किया था व्हेन आई वाज टीचिंग टू फर्स्ट बैच। तो सी इसका 1 2 3 का वैल्यू देखो ट्रांसफॉर्म होके कैसे आया, 0 1 10 एंड 100, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे आप देखिए, देखो 10 और 100 में डिफरेंस 90 का है, ठीक है, लेकिन 2 और 4 में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग या 2 का बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप देख रहे हो कितना कॉम्प्रेशन और कितना नजदीक आ गया ये रिलेशन। तो दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन अंडरस्टैंड इंटरनली क्या है ना, इंटरनली इसका जो अगर लॉजिक, मतलब ये रिलेशन जो हमने एक मैंने आपको बोला था देखो, डायरेक्ट जो रिलेशन है, रेसिप्रो, मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन, वो सब प्रोपोर्शन और रिलेशन वाली जो चीजें बोली थी, तो यहाँ पे एक्चुअल डेटा का देखो डिफरेंस कितना है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हाउ क्लोज इट इज, ठीक है, डेटा इज सेम, बट आफ्टर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन लाइक गुड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड मेथोडोलॉजी टू हैंडल द आउटलायर्स। तो देखो 100 आउटलायर था, बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग यूजिंग लॉग ट्रांसफॉर्म इट्स वैल्यू इज 4। तो दैट्स द थिंग गाइस। तो एंड ये वाला अपना जो ओरिजिनल डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म होने के बाद हाउ इट लुक्स लाइक, सी द डेटा इज वेरी, द डेटा इज नाउ रेंजिंग फ्रॉम 2 to 4 के अंदर ही डेटा सिमट गया पूरा। जो डेटा हमारा ऐसा था, ये ऐसा वाला डेटा, ये ऐसा वाला डेटा, ओरिजिनल डेटा ये था अपना, ये वाला, ये ओरिजिनल डेटा था। जैसे ही लॉग ट्रांसफॉर्म किया ओरिजिनल डेटा पे, तो यू कैन सी कैसे वो डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू दिस फॉर्मेट, ठीक है। अभी फिर इसमें थोड़ा और आप डीप में पूछ सकते हो कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर उसका फिर डेटा में इम्पैक्ट हो रहा है, नो, जैसे मैंने बोला ना कि बिहेवियरल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, हाँ, प्लेस वैल्यू उनकी चेंज हो रही है, बट एक्चुअल मशीन को जब फीड होता है ना ये, तो एक्चुअली ये डेटा भी नहीं जाता मशीन को, ऐसा भी नहीं जाता। तो फिर मशीन को कैसे जाता है, मशीन को जो डेटा जाता है ना, तो दैट इज, आपने अगर टेंसर फ्लो और नमपाई वगैरह ये सब चीजें, तो मशीन अंडरस्टैंड द डेटा इन वेरी लाइक, उस मशीन का जो अंडरस्टैंडिंग का जो फॉर्मेट है विच इज नॉट इवन ह्यूमन रीडेबल, ठीक है ना, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं रहेगा वो वेक्टराइजेशन, वो सब जो जो मशीन को बराबर प्रॉपर समझता है वैसे फॉर्मेट में ये सब डेटा जाता है, आप समझ रहे हो मशीन को, और इट इट अंडरस्टैंड एंड इट लर्न्स द पैटर्न्स एंड रिलेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपरली, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये कॉम्प्रेशन विल नॉट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये रहने दो या ऊपर वाला रहने दो, बट हमारे एक एफिशिएंट हैंडलिंग के लिए, आउटलायर्स को हैंडलिंग करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई होप कि ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझा होगा कि ठीक है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा है गाइज, हमने लॉग 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 के टेबल देखे ना, कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई व्हाट इज द लॉग ऑफ ये, व्हाट इज द लॉग ऑफ, आप गूगल पे जाके कर सकते हो अपना ओरिजिनल डेटा क्या था, ओरिजिनल डेटा गया, ठीक है, क्या गया वो 108 वाला, ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, हाँ, ओरिजिनल डेटा ये है ना, तो इसका लॉग देखो आप,
लॉग टेबल में जाके लॉग देखो या ऑनलाइन लॉग देखो, लॉग देखने के बाद यू विल सी कि उसका ये लॉग है, और लॉग ट्रांसफॉर्म करने के बाद हाउ क्लोज दिस वैल्यूज आर एंड हाउ लाइक दिस डेटा इज वेरी प्रॉपरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस डेटा कैन बी फिट। ये इसलिए आएगा गाइज, जैसे आप डेटा पे प्री प्रोसेसिंग आगे आगे बढ़ोगे ना, यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वंस यू यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन ना, आपको इमीडिएट वो एक्यूरेसी में फ्लक्चुएशन और चेंज दिखेगा मॉडल की। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन है। स्क्वायर रूट, आई होप कि आपको स्क्वायर रूट पता है। देखो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 16 वाला, वो जो भी मतलब 16 या 22 का होगा ये स्क्वायर, ये 1030 का ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, बिकॉज सी 111 का स्क्वायर क्या है, 121 है बराबर। तो 130 का स्क्वायर रूट इज नियर अबाउट दिस वाला पार्ट, एंड दिस ऑल डेटा इज ट्रांसफॉर्म यूजिंग स्क्वायर रूट। ये बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिमाइजेस लाइक लैम्बडा फॉर द बेस्ट फिट। ये बेस फिट, फिट का मतलब क्या है, जब आप ये डेटा मशीन लर्निंग को दे दोगे और वहां पे एक फंक्शन है फिट करके, मॉडल डॉट फिट, तो वंस यू यूज दिस डेटा एंड फिट द मॉडल ऑन दिस डेटा ना, your model learn the patterns and model like machine learns the data in very proper format, and even for your data you can utilize this box cost transformation। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला है, बट अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसा ये इंपोर्ट करना है स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी, और ये बॉक्स बॉक्स का एक फंक्शन है, उसको देके आपको सिर्फ डेटा भेज देना है वहां। ठीक है, तो वेरी क्लियर हियर। फिर आप यहाँ पे भी बोलोगे फिर वन क्यों किया, लेट से अगर आपके दिमाग में आएगा वन क्यों किया, सी डेटा एंटायर डेटा है, उसमें वन ऐड करने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गया। ठीक है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वन भी नहीं कर सकते, इट्स ओके, डेटा भी पास कर सकते हैं। ठीक है, बट जस्ट लेट से अगर डेटा में जीरोज जीरोज मतलब ये अभी जीरो इज ऑल्सो डेटा गाइस, तो इन दिस केस ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो आप, ये भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट डेटा ऐसे समझो कि डेटा डायरेक्ट पास करोगे आप बॉक्स कॉक्स के लिए, ऐसा सिर्फ ये जीरो को हटाने के लिए, मतलब यू आर जस्ट मैनिपुलेटिंग योर डेटा, जस्ट एडिंग सम वैल्यू टू योर डेटा, इसलिए वन ऐड किया है, नथिंग वरी ऑन दैट। ठीक है, तो बॉक्स कॉक्स मेथड एक है जो जिससे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आपके डेटा को, और ट्रांसफॉर्म डेटा, तो अल्टीमेटली यही आप एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखो, ट्रांसफॉर्म डेटा इज अ नॉर्मल शेप डेटा विच इज इंक्लूडिंग आउटलायर्स एफिशिएंटली। ठीक है, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिंग मेथड्स एंड हैंडलिंग आउटलायर्स मेथड आर टोटली फॉर ओनली वन पर्पस, कि हाउ यू आर डीलिंग विद अनबैलेंस डेटा, हाउ यू आर डीलिंग विद द आउटलायर्स। ठीक है, आउटलाइनर्स या आउटलायर्स, आउटलायर्स इज द बेस्ट word actually। ठीक है, we can say the terminology in machine learning। ठीक है, and ओके दीज आर सम एग्जांपल्स। आप मैं आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू। ये टाइटैनिक के केस में किया है गाइस, टाइटैनिक के केस में एक एग्जांपल लिया था, तो फेयर में हमने आउटलायर्स देखे थे। इफ यू रिमेंबर 500 500 जो दिख रहा था दैट वाज फेयर, तो फेयर वो 500 वाली वैल्यू थी आउटलायर, और उसका हमने ट्रांसफॉर्म करके ये टाइटैनिक का जो क्लीन जो डेटा है उसमें ट्रांसफॉर्म किया फेयर को, और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, वो 500 वाली चीज है उसको कन्वर्ट कर लिया एक पर्टिकुलर, लेट से यहाँ पे यूज किया है हमने कौन सा मेथड यूज किया हमने, ये जो क्वार्टाइल बेस्ड जो है ना, वो आईक्यूआर बेस्ड मेथड यूज किया है हमने। ठीक है, कैपिंग के लिए। तो दिस आर द थिंग्स, एंड ये दिस इज फॉर योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग गाइस। ठीक है, अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि जब हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट देखेंगे, असाइनमेंट्स या देखेंगे, उस टाइम पे ये जो नॉलेज आप सीख रहे हो इसका यूज होगा, इसका यूज होगा। इवन कैगल पे जाके, जैसे मैंने बोला कि आप कैगल पे जाओ और डेटा सेट उठाओ, तो वहां पे डेटा साइंटिस्ट लोगों ने कैसे कैसे काम करके रखे हैं, ठीक है, वो आपको दिखेंगे। और उस टाइम पे वो उनका जो कोड होगा उसमें उन्होंने जब ये स्टैंडर्ड स्केलर और ये सब चीजें यूज की ना, तो होता था जब ये, जब कैगल से उठा मतलब लर्न करते थे ना, तब वहां पे पूछते थे भाई ये क्या किया है, फिर डेली मीडियम जैसे उस वहां पे जाके उसके बारे में रिसर्च करके, डेली मीडियम यू नो ना, चलो मैं वो भी दिखाता हूँ। ये डेली मीडियम इज वेरी गुड फॉर डेटा साइंटिस्ट, मतलब ये चैट जीपीटी से पहले जो था ना, ये सब चीजें बहुत अच्छी थी। मैं बोल रहा हूँ डेटा साइंटिस्ट सब वहां पे मिलते थे हमको, ऐसे डेली मीडियम करके, डेली मीडियम मीडियम, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं गाइस डेटा साइंटिस्ट के। हाँ ये मीडियम करके, सॉरी नॉट डेली मीडियम बट मीडियम करके। तो अगर लिंक्डइन में अगर आप कोई पोस्ट आर्टिकल्स अगर देखते हो, या फिर जब भी आपको कहीं गूगल वगैरह जो भी करोगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे देखो, नॉइज रिमूवल, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है लर्निंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए।
तो मीडियम इज ऑल्सो गुड थिंग। ठीक है। तो मे बी वो कैगल के डेटा साइंटिस्ट भी बोलते होंगे यार कि है ना क्या, ये जो अपना ओरिजिनल जो नॉलेज है, फिर पहले तो बहुत बूम में था, कैगल वाज वेरी गुड, मीडियम यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे। जैसे ही चैट जीपीटी और ये सब चीजें आ गई तो सिर्फ अभी जिनको कोर नॉलेज की ज्यादा भूख है वही लोग यहाँ पे आते हैं फिर अभी। इट्स ओके। सो दिस आर द थिंग्स गाइस, ये इन टुडेज लेक्चर ना, तो ये आपको बताना था कि ये मेथोडोलॉजीज है, हाउ टू डील विद इनबैलेंस डेटा एंड हाउ टू हैंडल द आउटलायर्स. I will share this notebook with you. Just go just use this notebook to understand see original data. And यहाँ पे देखो आप ओरिजिनल डेटा देखो क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. दिस इज आउटलायर, दिस 100 इज आउटलायर. ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग मी. लाइक आई मेरे साथ हो आप, तो यहाँ पे देखो ये आउटलायर है एंड एंटायर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर. ओके. सो सो इन आवर स्ट्रैटेजीज हमने तीन स्ट्रैटेजी, तो ये रिमूव अगर आउटलायर करना है तो इसको सीधे से डिलीट मतलब निकाल ही दो, कंसिडर मत करो. तो ये डेटा है इसके साथ जाओ. बट लेट्स से अगर दिस डेटा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और फॉर मशीन टू लर्न, तो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. जैसे ही ट्रांसफॉर्म किया यू कैन सी क्या मैजिक हो गया, देखो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिस इज योर ट्रांसफॉर्म डेटा. ठीक है, बॉक्स कॉक्स का यूज करके. तो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है, 0 से 100 था, यहाँ से देखो ट्रांसफॉर्म हो के बाद 0.6 एंड 1.6. तो इसमें ये सब आ गया और 100 वाला जो था वो भी यहाँ पे कंसिडर हो गया, और जो ये 0 1 के नजदीक है वो भी हो गया. एंड देन योर मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो हियर. बट in this way you are considering the whole data, you are not removing the data. This is a small and simple example. बट अल्टीमेटली जब आप बड़े वाले डेटा पे करोगे ना, तो बड़े वाले डेटा पे यही चीज होने वाला है जिसमें आप यू विल बी एफिशिएंटली हैंडलिंग द डेटा. सो इन टुडेज लर्निंग दिस वाज द पर्पस एंड दिस आर द थिंग्स. आई होप के आई होप के यू गेट सम गुड आइडिया अबाउट दिस थिंग्स, द पर्पस एंड व्हाई वी आर डूइंग. सो वी कैन स्टॉप ओवर हियर. In next session guys I will explain you few things about synthetic data, थोड़ी अलग चीजें, और थोड़ा एंड में मैं थोड़ा कुछ तो इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आऊंगा जो विच विल बी न्यू फॉर यू गाइस एंड विल बी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन थिंक कि आप आपके इसमें कुछ यूज कर सकते हो ऐसे वाली चीजें. क्योंकि नाउ हर कोई अपडेट होता है, मुझे भी थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा कि डेली वाला जो मतलब जो ऐसा प्रॉपर टर्मिनोलॉजी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन सी द स्ट्रेंथ द गाइज, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स कि क्यों लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके भी कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लम्स है. दे हैव लाइक 1 to 1, और मुझे उन्होंने बताया भी कि लाइक ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, ये हो रहा है वो सब चीजें. बट इट्स ओके. एंड फ्रॉम माय साइड आल्सो आई विल ट्राई टू मेक इट बेस्ट. एंड तो रीजन ऐसा है कि आपको थोड़ा लेट रिसेंट जो मेरे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा फ्लेवर देते रहूंगा, सो दैट यू विल नॉट फील आउटडेटेड और ये ओल्ड नॉलेज हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ओके गाइज, आई एम स्टॉपिंग हियर. इफ देर इज एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क. We will meet on next Monday. So I'm just stopping over here. But yeah, I'm for your queries and question, guys. ठीक है. और एक चीज है मैं आपको बता दूं, मतलब अभी ऐसा अनाउंस और ये सब चीज नहीं की, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग इन दैट वे कि जैसे मैंने देखा ना कि हो क्या रहा है, जो भी लोग हैं उनको सेशन अटेंड करना नहीं जम रहा है, बट उनका जो रिस्पांस मुझे मिला कि रिकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, और रिकॉर्डिंग क्योंकि उनका टाइमिंग जो भी है अभी ऑफिस का टाइम है और बाकी सब चीजें, तो दे आर वेरी हैप्पी विथ लाइक रिकॉर्डिंग देख के खुश हो रहे हैं और वहीं से लर्न कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे आई विल बी पुटिंग ऑल दिस थिंग्स, ये डीप लर्न, हाँ यहाँ पे मैं ना पूरा रिकॉर्डिंग्स और पूरा एलएमएस, जैसे मैंने बोला था कि एलएमएस मैं यहाँ पे सब डाल दूंगा. और यू विल बी लॉग इन एवरी डे एंड वॉट एवर द थिंग्स, आप जाओगे और सब देखोगे, रिकॉर्डिंग्स देखोगे, आपका प्रोग्रेस देखोगे, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, और जैसे अभी आप गूगल ड्राइव पे जाके देख रहे हो ना, वो सब चीजें आप लॉग इन करके प्रॉपरली आपके लॉग इन के हिसाब से देखोगे. सो आई एम डूइंग लाइक, मैं जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे बाकी की चीजों से मिलता है, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ. तो जल्दी मैं आपको ये शेयर कर दूंगा.
एंड आई विल, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा कि भाई आपके ये लॉगिन है और लॉगिन्स कीजिए और रिकॉर्डिंग्स देखिए, जो आप गूगल ड्राइव पे इंडिविजुअली जाके देख रहे थे वो यहाँ पे मिलेगा आपको। तो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, फिर वो सब चीजें थोड़ा, जैसे मैंने बोला सर्टिफिकेशन का भी, थोड़ा आपको असाइनमेंट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह सब वहाँ पे दे दूंगा। तो आपकी लर्निंग जर्नी स्मूथ हो जाएगी, दैट इज द इंटेंशन एक्चुअली। और सेकंड थिंग इज कि फिर आपको लेट से नाइट में आप उठ गए, सुबह में उठ के जल्दी करना है, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो दैट इज वन थिंग। एंड ठीक है गाइस, इट्स ओके, इफ देर इज एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू आस्क और वी कैन स्टॉप। हम लोग डेटा एनालिस्ट का रोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ना, मतलब अभी। यस यस यू कैन, यस। डेटा एनालिस्ट का आप शुरू कर दीजिए, बिकॉज सी अल्टीमेटली आप एक काम कीजिए, जैसे आप इस पे काम मतलब जैसे ही एक्सरसाइज और ये सब करोगे ना, ये हम्म। सब असाइनमेंट्स या कैगल पे जाके देखो, आप जब काम करोगे तो आपका दिमाग को एक्सप्लोर कीजिए कि ठीक है ये तो लर्निंग है, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, या फिर आपके इंटरनल मतलब यूज केसेस के लिए, या इसका आप कहाँ पे यूज कर सकते हो ये सब टेक्नोलॉजीज और चीजों का। तो ऐसे भी सोचिए, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखो प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ये प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ तो होंगे, डेटा को लेके बोलो, या फिर कुछ जो चीजें हैं वो एफिशिएंटली नहीं हो रही हैं, तो आप उसको एनालाइज करके आप कुछ तो कंक्लूजन निकाल के आपको आप बोल सकते हो आपके ऊपर जो मैनेजमेंट है या फिर हायर लेवल पे जो डिसीजन मेकर्स है उनको आप बोल सकते हो भाई, दिस डेटा आई फाउंड दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल और पैटर्न्स मुझे मिल रहे कि अगर ये भी हम यूज करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा जा सकता है, या आपको बिजनेस में ग्रो हो सकता है, ऐसा कुछ आप आपके साइड से इनसाइट निकाल सकते हो। एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि हर हर किसी को अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है हर एक को पता होता है, और कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहाँ पे बिजनेस में बढ़ाने के लिए, बिकॉज सी बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पर्पज होता है कि उनका बिजनेस ग्रो होना चाहिए और उनको प्रॉफिट होना चाहिए। और उसका जो कोर है वो है डेटा। डेटा मतलब कस्टमर का डेटा होने दो, या जो भी प्रोडक्ट्स का डेटा, या जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिस भी चीज पे, तो डेटा इज अ कोर। तो उस कोर वाली चीज को अगर ठीक से समझा जाए और ठीक से अगर उसको अंडरस्टैंड किया जाए, लर्न किया जाए, तो देर देर आर सो मेनी, लाइक उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो यू कैन थिंक ऑन इन दैट वे। आप देखो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, जब व्हेन आई वाज स्टडिंग ना ये सब चीजें, एनालिसिस और ये एक्सप्लोरेशन ईडीए, तो उस टाइम पे मैं मेरे जो मैंने बोला था कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी थी उसमें मैं काम करता था। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। और आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टॉप ना, ओके रिकॉर्डिंग चल रही, ठीक है, इट्स ओके मे बी। तो उसमें क्या था, हमारा जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, वो रियल एस्टेट का प्रोडक्ट था, कॉन्सियस नाम था उसका। और वहां पे जैसे मैंने बोला, किसी भी ऑर्गेनाइज हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ तो एक प्रॉफिट बेस्ड उनका पर्पस होता है। ठीक है, लेट मी री शेयर माई स्क्रीन। तो उसमें हमारा क्या था, काम क्या था, और फिर हमने उसको प्रॉफिट बेस्ड कैसे बनाया, उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसको हमने प्रॉफिट बेस्ड कैसे बनाया, मतलब एंड ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, बहुत बहुत पोटेंशियल और स्कोप होता है हर एक चीज का। तो हमारी तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। तो उसमें क्या था, हमारा प्रोडक्ट एक कॉन्सियस था, वो कॉन्सियस हम इंटीग्रेट करते थे किसी भी रियल एस्टेट के वेबसाइट पे। ठीक है, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, वो किसी भी रियल एस्टेट मतलब कैलिफोर्निया, उस यूएस साइड में, यूरोप साइड में जो भी रियल एस्टेट के ऑनलाइन जो चलते थे ना, उसमें रियल एस्टेट के वेबसाइट थे। तो कस्टमर इन द सेंस जो लोग जिनको माइग्रेट होना था, या फिर अपने इंडिया के या बाहर कंट्री के लोग जहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे कंसेप्ट है अभी भी, स्टूडियो बेस्ड अपार्टमेंट है, फिर वन रूम वाले, फिर उसके बाद 2 BHK 3 BHK, ऐसे एक रेंट बेसिस पे वो वहाँ पे ज्यादा चलता है। क्योंकि कोई भी परमानेंट ऐसे घर लेके, वो वहाँ के लोकल लोग रहते, बाहर के लोगों को तो ऐसे ही चलता है सब रेंटिंग वगैरह। तो अपने इंडिया में कैसे चलता है कि भाई घर मालक से कांटेक्ट करो, फिर घर मालक बोलेगा डिपॉजिट, ये सब वो उनका थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है वहाँ पे। वो ऑनलाइन ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और ऑनलाइन में वो प्रॉपर्टीज देखते रहते हैं। जैसे अपने पास अगर देखा जाए तो वो नो ब्रोकर है, और फिर हमारे पास वो 99 एकर्स, और एक बहुत अच्छी है, ब्रिक्स का कुछ तो नाम है उसका, ब्रिक्स में भी, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैजिक ब्रिक्स या कुछ तो नाम है उसका। ठीक है, तो ऐसे साइट्स में हमारे यहाँ पे चलता है, उनके साइट में भी रियल एस्टेट के जो प्रॉपर्टी के साइट्स थे ना, जो खुद के बिल्डर वगैरह वो जो देते थे। ठीक है,
तो कस्टमर आते थे, कस्टमर देखते थे, फिर उनको अगर कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस है तो फिर रीच आउट करते थे वो डायरेक्ट रियल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता था कि जो हमारे जो कस्टमर्स, मतलब हमारे जो क्लाइंट्स थे, ये रियल एस्टेट के साइट्स वाले, उनको हम ये एम्बेड कोड देते थे कॉन्सियर्ज का। ठीक है, वो उनके साइड में वो प्लगइन डालते थे, और हमारा प्लगइन सब सीआरएम सब मैनेज करता था, सब चीजें। वो कस्टमर्स को, फिर कस्टमर्स यहाँ पे उनके क्वेरीज वगैरह पूछते थे, और वो सब क्वेरीज का हैंडलिंग होता था। ठीक है। उसमें फिर प्रॉब्लम ये था, मतलब ये बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट था, क्योंकि यहाँ पे एजेंट्स इंक्लूड थे। तो जैसे ही बुक होता था तो एजेंट्स क्या करते थे, उनको प्रॉपर्टी शो करते थे फिजिकली। ठीक है। तो फिर हमने उसको बाद में फिर वीडियो, जैसे कोरोना आ गया था तो वीडियो के हमने ये किए थे, वीडियो मीटिंग होते थे और प्रॉपर्टी दिखते थे। ठीक है। तो यहाँ पे लोग आते थे, कस्टमर आते थे, प्रॉपर्टी देखते थे, कुछ पूछते थे और चले जाते थे। तो मेन क्या था, फनल। फनल आपको अगर पता होगा तो फर्स्ट कैप्चर द कस्टमर्स, कन्वर्ट देम इनटू लीड। लीड के बाद उनको हम बोलते थे फिर कस्टमर्स, और कस्टमर्स मतलब उन्होंने रजिस्टर वगैरह सब किया, और होता था कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जनरली ये ही फनेल बेस्ड ऐसे ही होता है। ठीक है। लीड मतलब जो विजिटर्स है वो आ गए, उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने रजिस्टर किया, लेकिन परचेस नहीं किया आपका सर्विस, तो वो बन गए आपके कस्टमर्स। ठीक है। सॉरी, विजिटर्स, विजिटर्स को जब उन्होंने इंक्वायरी की तो बन गए लीड। लीड बनने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, बट सर्विस परचेस नहीं किया, बट रजिस्ट्रेशन मतलब उनका पूरा इंफॉर्मेशन वगैरह दिया, बन गए कस्टमर्स। और जब उन्होंने परचेस किया सर्विस, तो वो बन गए आपके आपके कंज्यूमर्स। ठीक है। तो ये उनका पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इनका भी और हमारा भी एक ही पर्पस था कि इनको कन्वर्ट करो कंज्यूमर में, मतलब उन्होंने हमारी सर्विस लेनी चाहिए, और बार बार उन्होंने ये पे करके वो फैसिलिटी लेनी चाहिए, ये सब पूरा था। तो हमारे केस में क्या होता था, जब भी ये लोग आते थे, विजिट करके जाते थे, हमारे पास एक प्लगइन में ये डेटा कैप्चर होते रहता था, हमेशा हमेशा कैप्चर होते रहता था हमारे, हमेशा हमको मिलता था पूरा डेटा। लेकिन एक ट्रेडिशनल वे से क्या होता था, इनके ऊपर कोई ज्यादा फोकस ही नहीं कर रहे थे। सिर्फ किसको ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा था, जो कस्टमर है, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है सिस्टम में, जिनकी एंट्रीज है, उन पे फिर उनका उनका कांटेक्ट नंबर पे उनको कॉल कीजिए, फिर उनको पूछिए भाई आप देख रहे थे प्रॉपर्टी, क्या हो गया आपको। फिर ये सब, वो सब वो कॉलिंग एजेंट हैंडल करते थे ये सब चीजें। ठीक है। तो हमने ये सब चीजें तब यूज करना शुरू कर दिया था। पाइथन तो वी वेर ऑलरेडी वर्किंग ऑन पाइथन। तो फिर मशीन लर्निंग का क्लास, ये मशीन लर्निंग की मेथोडोलॉजी, सुपरवाइज अनसुपरवाइज, फिर उसमें फिर कैटेगरीशन क्लासिफिकेशन ऑफ दिस दिस काइंड ऑफ, लाइक कंसीडर दिस काइंड ऑफ विजिटर्स। ये विजिटर्स को देखो, उनका लाइक अनलाइक क्या था। ठीक है। यूजिंग आवर दिस एंटायर, उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये 2019 की बात कर रहा हूँ। 2019 में ये सब हम चीजें इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिए थे, कि वो उनका डेटा लो, उनका डेटा लेके उनकी इंटरेस्ट कहाँ पे था एक्चुअली, उनका इंटरेस्ट कहाँ पे था, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें थी, हम उनको दे रहे थे ना, मतलब एक सेक्शंस थे, तो उनका इंटरेस्ट किस सेक्शन में है, और उनका इंटरेस्ट किस सेक्शन में है, उसके बेसिस पे ये बंदा कंज्यूमर बनने के चांसेस किस वाले चीज पे ज्यादा है, वो हम निकालते थे। तो वो सब मशीन लर्निंग हम तब यूज करते, एआई वगैरह वो दूर की बात थी, तो मशीन लर्निंग हमारा यूज होता था उसमें, उस केसेस में। ठीक है। और फिर हमने काफी सारा, मतलब ये सब चीजें देखो, हाँ, ये बात कहाँ से शुरू हुई अपनी, ये डेटा को एक्सप्लोर करने की, एनालिसिस। पहले तो एनालिसिस हुआ इस सब चीज पे, जो हम ईडीए सीख रहे हैं ना, हिडन पैटर्न्स, फिर उनकी जो प्रोबेबिलिटी, जो मैंने बोला कंक्लूजन, और हम इन्फरेंसेस जो निकलते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह वो सब चीजें, और जो हमने कंक्लूड किया कि भाई क्या चांसेस है कि ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, ये बंदे आ सकते हैं। तो देखो, मतलब सोचो कि कैसे हमने ये इनका जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक बढ़ा के इनको, जो हमारा जो फाइनल जो था कंज्यूमर का, जो ये इम्प्लीमेंट करने के बाद, ये सब चीजें मशीन लर्निंग के इम्प्लीमेंट करने के बाद, ये जो है ना, ये बहुत बढ़ गया, और बिजनेस बहुत बड़ा था ये इंटायर बिजनेस बहुत बड़ा था इस केस में। और एक ही हमारा सिक्वाया, आपको पता होगा उधर की साइड से सिक्वाया है। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी साइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ ना, अपने इधर भी है देखो। अगर पूना किसी को पता है यार, उसका बहुत, यार्डी यार्डी पता है आपको, यार्डी कंपनी है, तो यार्डी का पुणे में भी उनके ऑफिसेस है। ठीक है। ये रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी है गाइस, तो इनको मतलब देर आर सो मेनी। अभी वो 2019 मेरे बहुत सारी कंपनीज थी एक्चुअली उधर की, उस साइड की, वो जो मुझे पता थी, बट ये जो बड़े क्लाइंट्स थे हमारे, उनके नाम याद है। तो द थिंग इज,
देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, ईडीए से हुई थी। ये सब डेटा ईडीए के थ्रू था। हमारा पैटर्न फाइंडिंग और बिजनेस का जो मेन पर्पस, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब ईडीए था एक्चुअली। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन का डिसीजन आया और फिर हमने बिजनेस में ग्रो किया। ठीक है। तो ये चीज है गाइस। तो फिर जो भी आप सीख रहे हैं ना, उस वो जो सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए कि किस वे से इसको आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो, उस डेटा को किस वे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो वाला थिंकिंग आपका एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए, वो मुझे बताना है आपको। तो ईडीए आप जो पढ़ रहे हो ना, उसको एक्सप्लोर कीजिए और स्टार्ट। क्योंकि डेटा एनालिसिस का जॉब क्या है, एनालिसिस मतलब क्या, एनालिस्ट क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे देखिए आपके, उनका क्या होता है काम, उसमें बिजनेस में कैसे ग्रो हो सकता है, क्या वो लोग करते हैं, और उसके फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हम सीख रहे हैं उसमें हम ज्यादा क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब चीजें आप थिंक करना शुरू कर दीजिए, ये सब चीजें। और आगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जब सीख के इम्प्लीमेंट करना है। नॉट ओनली कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के, आप आपका भी खुद से देखिए ना कि आप आपके बेनिफिट के लिए, ये जो आप लर्न कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो उसके बारे में सोचिए आप। तो पोटेंशियल बहुत है और चांसेस बहुत है, सिर्फ आपको थोड़ा आपका सोच और थिंकिंग में थोड़ा डिफरेंट लेवल की आपको थोड़ा मतलब करिए उसको। क्योंकि जो पिक्चर आप देख रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का और आपके डेटा को का, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो था, जो हमने देखा उस पे डिस्कस किया और इम्प्लीमेंट किया। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लगता है उसके बेसिस पे आप कीजिए। या फिर लर्निंग तो एक है ही, लर्निंग कीजिए फिर जैसे डेटा मैंने बोला। ठीक है, ये सेशन होने के बाद आई विल शेयर सम लिंक्स, वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट मिलेंगे। तो आप उसको फिर डाउनलोड कीजिए और उस पर ईडीए कीजिए। तो ईडीए में हमने तो मेथोडोलॉजीज देखी है, हमने फंक्शंस देखी है, वो कीजिए, आप सिर्फ एग्जीक्यूट कीजिए। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सब चीजें, ट्राई टू फाइंड द हिडन पैटर्न्स, ट्राई टू सी के कैसे यूजफुल कर सकते हो उस डेटा को। अभी इस स्टेज में, हाँ। आगे जाके तो फिर मशीन लर्निंग आप सीखोगे, न्यूरल नेटवर्क सीखोगे, एआई सीखोगे, तो उस टाइम पे वो सीन डिफरेंट रहेगा, चीजें डिफरेंट रहेगी। ठीक है, आई होप के दिस इज क्लियर। एंड यस गाइस, एंड सी टाइम मैनेजमेंट अगर मैं आपको बोलूंगा ना, तो आप बिकॉज दे बोलते बोलते 6 महीने निकल जाएंगे, हम ये पूरा जर्नी भी खत्म कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बट आप आपका सही में आप लर्निंग जर्नी में टाइम दे पा रहे हो, अगर नहीं तो आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए फिर। ये वही एक आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि जैसे आप ऑफिस के आवर लॉग इन करोगे, ऑफिस में आ गए, तो फिर रात को कितना देर होगा क्या होगा, यू डोंट नो। बट सुबह जल्दी उठना इज इन योर हैंड। रात को जो होना है होने दो, देर होती है होने दो, बट सुबह का टाइमिंग जो है वो जल्दी उठने का आप, और आदत होती है बस, बाकी कुछ नहीं। पहले आपको लगेगा कि थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं जम रहा है आपको सुबह उठना, हो सकता है ऐसे होगा। बट आदत एक बार लग गई ना, तो कुछ भी होने दो इधर का उधर, आप सुबह जल्दी भी उठोगे और आपको कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे ना, कुछ भी दिक्कत आएगी। बट हाँ, उससे बेनिफिट काफी सारा होगा। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे बेनिफिट है आपको, मतलब व्हाट्सएप यूट्यूब सब जगह मिल जाएगा, बट आई एम जस्ट रिकॉलिंग दोज थिंग्स। उससे क्या होता है ना, आपके ब्रेन में बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिव सोच है, और आप क्या कर सकते हो वो पावर भी आप अंडरस्टैंड करते हो। सुबह जल्दी उठने के वो बहुत अच्छे फायदे। तो आई होप के, बिकॉज अल्टीमेट गोल वही है इसको, आपको भी एजुकेट इस वजह से करना कि आप भी कुछ अच्छा कर पाओ। और फिर जो फ्रीडम है वो टाइम है। जैसे देखो मैं, आई एम वेरी, देखो मैं ये सब मैं मेरे कंपनी के काम करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग में एआई के मेरे 2-3 कंपनी के साथ टाइप है, मैं उनके भी काम करता हूँ। फिर यहाँ पे ये आपको फिर बताना, मतलब ये लर्निंग का ये सब करता हूँ। बाकी जैसे मैंने अभी वो दिखाया डीप लर्न एकेडमी डॉट, बचा टाइम तो वो करता हूँ। बाकी तो मेरे पास और टाइम है, मैं फैमिली, मैं अभी ये क्लास से पहले 1 घंटा में साइकिलिंग के लिए गया था, मेरे मेरे सब, मेरा बच्चा और बेटी और मेरे वाइफ को लेके हम साइकिलिंग करके आए। तो आई हैव इनफ टाइम, क्यों है, बिकॉज सी, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप ये सब लर्निंग जर्नी को इतना अच्छे से कीजिए तो आपका फ्यूचर का टाइम आप सेव कर पाओ। वही अपना, मतलब आपको फ्रीडम मिले, मतलब सब मिले, पैसा मिले, फ्रीडम मिले, फैमिली मिले, हेल्थ मिले, जो आपको चाहिए वो सब मिले। तो उसको इस एंगल से भी देखिए, आप सिर्फ लर्निंग करना है और जस्ट अपने कंपटीशन में लगे रहना है, और फिर मतलब नहीं क्या, उस वे से मत देखिए, इस पूरे प्रोसेस को आप
थोड़ा ट्राई टू थिंक इन डिफरेंट वे, ठीक है? ओके अगर मैं स्टॉप नहीं हुआ तो आई विल continuously speaking ना. All right guys, so thanks guys, we will meet Yeah, again. thank Thank you. Thank you, Bharat.